हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड फ्रॉम व्हाट। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है और किन चीज़ों से बनती है। So it says homeopathic medicines are prepared from plants, bark, roots, stem, buds, leaves, juices, gums, oils, etc. or whole plants. Live substances जैसे secretion of healthy organisms, poisons, etc. Body impurities, chemicals, synthetics, minerals, etc. These medicines are available as mother tinctures, triturations or potencies. हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हर चीज से बनती है। हम क्रूड फॉर्म, वी डोंट यूज क्रूड फॉर्म, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते, बट उसको हम पोटेंसीज में बनाते हैं, उसको ट्राइचुरेट करते हैं और वो एक पावर जनरेट करते हैं उसमें से। So it is made from everything. The following media are used to prepare or to administer the medicines. These can be dry or in liquid form. The first is sugar of milk to prepare the trituration or add medicine to it. शुगर ऑफ मिल्क क्या है? एक पाउडरी सब्सटेंस है जिसमें हम लोग मेडिसिन डाल सकते हैं और उनको हम दे सकते हैं। The next is pharmaceutical grade cane sugar for preparing globules और tablets। जो हमारी छोटी छोटी white गोलियां आती है वो बनती है pharmaceutical grade cane sugar से। Distilled water to prepare and to administer medicine। कुछ कुछ potencies हम water potencies में देते हैं, water dose में देते हैं कुछ medicines, so distilled water is used for that। Alcohol to prepare mother tinctures or potencies। अल्कोहल यूज होती है जिसमें हम लोग potencies बनाते हैं या हम लोग मदर टिंचर्स बनाते हैं, अल्कोहल में ही वो ट्राइचुरेट होता है। ग्लिसरीन to preserve or to administer the medicines। Vaseline is used to prepare ointments। Solvent ether is used to test medicines and syrup simplex is to prepare syrups। What is mother tincture? हम देखते हैं mother tincture क्या है। Mother tinctures are generally prepared from plants which are soluble in alcohol। The alcohol percentage can be up to 90। Mother tincture is written as dash, 0 dash। तो mother tinctures क्या है? जो usually plants, they are prepared from plants medicines और जो alcohol में soluble हो सके, जो भी medicines alcohol में soluble हो सके, usually from plants, these are mother tinctures और उनका percentage, alcohol percentage उनमें रहेगा 90%। Triturations क्या है? Substances that are not soluble in alcohol are ground with sugar of milk and triturations are prepared। Now what is a potency? Mother tinctures and triturations contain the medicine in crude form. These are added to alcohol and are given successive strokes in a special way or are ground with sugar of milk in a mortar and a pestle to potentize them। पोटेंसी क्या हो गई? मदर टिंचर्स और ट्राइचुरेशंस जो हम बनाते हैं जिसमें मेडिसिन है वो क्रूड फॉर्म में है, उनमें अल्कोहल ऐड किया जाता है कुछ परसेंटेज में और उनको एक स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, सक्सेसिव स्ट्रोक्स दिए जाते हैं जिससे उनका वो पावर बढ़ता है, जिनमें वो वाइटल फोर्स बढ़ता है जिससे, या फिर जो पाउडरी शुगर ऑफ मिल्क है उसको वो मोर्टार एंड पेस्टल के साथ मिक्स कर देते हैं, अच्छे से ब्राउन कर देते हैं, तो जिस वजह से वो पोटेंसी रेज हो जाती है। सो दैट इज अ पोटेंसी। For potentization, the mother tincture and alcohol, sugar of milk or distilled water can be in the ratio of 1:9 or 1:99। Potentization जब हम करेंगे mother tincture में, alcohol, sugar of milk उनका क्या रेशियो रहेगा? 1:9। तो जो भी mother tincture हमारा प्रिपेयर हुआ, मतलब जो भी हमारा बेस मेडिसिन प्रिपेयर हुई उसका परसेंटेज रहेगा 1 और अल्कोहल लो, शुगर ऑफ मिल्क लो या डिस्टिल्ड वाटर लो, उनका रेशियो रहेगा या तो 9 और 99। So medicines prepared from 1:9 are given the potentized name in x along with the number. For example 3x, 2x। So this is a decimal scale। ये decimal scale में मेडिसिन हमारी प्रिपेयर हो गई, पोटेंटाइज हो गई। तो उसमें 1 पार्ट क्या है? 1 पार्ट हमारा मदर टिंचर है, मतलब जो बेस मेडिसिन निकली हम लोग को मोटर एंड पेस्टिस से ग्राइंड करने के बाद या उसको ट्राइचुरेट करने के बाद या अल्कोहल में उसको सक्सेसिव स्ट्रोक्स देने के बाद उसमें से जो पावर निकला, दैट इज अ मदर टिंचर। अब वो मदर टिंचर क्या बनेगा? उसको जब हम अल्कोहल या शुगर ऑफ मिल्क या डिस्टिल्ड वाटर में वापस मिलाएंगे, बट उसका रेशियो कैसे रहेगा?
मदर टिंचर वुड बी 1%, अल्कोहल, शुगर ऑफ मिल्क और डिस्टिल्ड वाटर रहेंगे 9 या 99%। तो जो 9% रहेगा अगर कुछ, तो उस पोटेंसी का नेम हो जाएगा x या डेसिमल स्केल। So that is 3x, 2x and so on. So this is a decimal scale. If the medicine is prepared as 1:99, that is the centesimal scale, वो centesimal scale में बन जाएगी। तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल नक्सोमी का 30, उसमें हम लोग x y कुछ भी नहीं लिखते हैं, इट्स जस्ट c, 30c, 200c, राइट। सो दिस इज अ centesimal scale। इसमें क्या होगा, 1 part would be mother tincture and 99 parts would be alcohol या water या sugar of milk या distilled water। ठीक है, तो 1:99 वाला जो मेडिसिन का रेशियो रहेगा वो बन जाएगा सेंटीसिमल स्केल। ये तो हुआ हाउ टू प्रिपेयर योर मेडिसिन, राइट। हमारी पोटेंसीज कैसे बनती है, हम लोग मेडिसिन को ट्राइचुरेशन कैसा क्या होता है, उसको कैसे कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो। अब बात रही मेडिसिन सिलेक्ट कैसे करते हैं, है ना, वो भी तो हमको जानना है कि मेडिसिन तो बन गई, अब उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। So we have already mentioned that homeopathy rests on a basic principle of nature. Allopathy or Western systems do not pay any attention to the symptoms of the patient. The medicine is prescribed on the basis of the name of the ailment, whatever the symptoms are. So हम लोग का होम्योपैथिक सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, बेसिक प्रिंसिपल है उसका कि सिमिलिया सिम्प्लिबस क्यूरेटिव। पर जो वेस्टर्न पैथीज हैं या और जो भी पैथीज है, दे डू नॉट रिलाई ऑन दिस। उनके लिए तो एलिमेंट का नाम है, डिजीज का नाम है, सपोज कोराइजा, तो वो लोग कोराइजा की मेडिसिन हर पेशेंट को देंगे सेम। बट हमारे में ऐसा है नहीं, हमारे में वी डिफ्रेंशिएट एवरी कोराइजा पेशेंट, एवरी कोराइजा सिम्टम, और उसके बाद हम लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। Everyone knows that different patients suffering from the same ailment may show different symptoms. Different patients suffering from one common cold may manifest the different symptoms. इसमें एग्जाम्पल्स हम क्या ले सकते हैं कि वन पेशेंट इज कमिंग, वो बोल रहा है कि मेरी बर्निंग आईज है, बट रनिंग नोज है, ड्राई कफ है, और जब मैं वार्म वाटर पीता हूँ सिप बाय सिप तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज ओपन एयर में जाने से मुझे वापस मेरा आईज इरिटेट होने लगती है, इट्स वेरी मच बर्निंग एंड कोरोडिंग। सो दिस इज वन पेशेंट। अब सेकेंड पेशेंट जो आएगा वो बोलेगा कि मैडम मेरे नाक में से इतना जलन हो रहा है, जब जो डिस्चार्ज निकलता है इतना जलता है, मुझे आईज में से वाटर है बट वो जलता नहीं है, और मुझे कफ है तो मुझे अपनी चेस्ट को पकड़ के कफ करना पड़ता है, और जब मैं अपने को कवर कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे ठंडी हवा भी अच्छी लगती है, पर मुझे खाना पीना कुछ पसंद नहीं आ रहा है। द थर्ड पेशेंट व्हेन दे कम एंड दे से कि मुझे सिर्फ अपने आप के आसपास एक ओपन स्पेस चाहिए, ओपन एयर चाहिए, मैं ऐसे अपने आप को रूम में बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, मेरे को स्नीजिंग हो रही है, मुझे ड्राई कफ हो रहा है, मेरे ईयर में पेन है, मुझे नेजल डिस्चार्ज है बट इट इज वेरी मच ब्लैंड। तो ये एक सिम्टम, ये भी एक पेशेंट का हमारा सिम्टम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट डज होम्योपैथ डज, कि पेशेंट ने जो जो सिम्टम्स बोले हैं उनको वो रिकॉर्ड करेंगे, और उस रिकॉर्ड से जो मेडिसिन सबसे सिमिलर होगी उसके, कि जो मेडिसिन में ये सारे सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे, यानी वो मेडिसिन ने ये सारे सिम्टम्स प्रूव किए होंगे, ये सारे सिम्टम्स शो करती होगी ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, हम वही मेडिसिन उस पेशेंट को देंगे। हम एक मेडिसिन सब पेशेंट्स को नहीं देंगे क्योंकि सबका प्रेजेंटेशन तो अलग है, भले कॉमन कोल्ड है but सबका प्रेजेंटेशन अलग है। So we will not give same medicine, we will give different medicines depending on the totality what we get, depending on the drug which have proved these symptoms during the drug proving, those medicines are going to be given. Now, if these patients would have gone to another system of medicine, they would have been given one and the same medicine without differentiating the symptoms. So, those medicine will not cure the cold, but they will suppress it. Later on, this suppression can give rise to more severe ailments. We know that ना कि medicine से अगर suppress हो जाता है या palliate हो जाता है, तो suppression होने के बाद later on
कुछ और एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट इन द केस ऑफ होम्योपैथी ऐसा नहीं होता है। उसमें पेशेंट के सिम्टम्स को अगर आप देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, उसको जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वही वो हील कर सकते हैं ना। The reason for giving a different medicine to every patient is that at the time of drug proving, different medicines produce different symptoms, which shows that the homeopathic medicines are selected on the basis of similia similibus curanter. So guys and doctors, thank you for watching the video, and if you liked it, please press the like button and do subscribe to my channel for more learning and growing in homeopathy. And this way we are going to do all the basics of homeopathy and relearn them. Thank you.